Hello everyone, how are you all? I hope that you are doing good and great in health. And here we are with the topic oscillation. Already covered 2 lectures on that. So this is the third one. What about you guys? How you are feeling today? How's the day? Christmas gone well, everyone? So make sure that I'm audible to you and the screen is visible to you. If it is so, please let me know in the chat box that screen is visible and I'm audible. Let me know in the chat box. हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू यू? अरे ऑडिबल और स्क्रीन के बारे में तो बताओ यार एटलीस्ट. हाउ वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट द क्लास? आई हैव रन अ पोल. इफ यू आर हेजिटेटिंग आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट पोल. एवरीवन, देखो इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन चैट बॉक्स में बता दिया करो. कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं. ओके, थैंक यू नवोदयन. अजमाला इज हियर. बिंदु, हाय शिमोगा. जेएनवी शिमोगा से बहुत सारे बच्चे हैं. इशरत, फरनाज, हावेरी, निधि, सुहरात, होशिया, लिखित. हाउ आर यू ऑल गाइस? फाइन. ठीक है, चलो ऑसिलेशन के बारे में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ. फर्स्टली वी शुड स्टार्ट विथ फेस, लेकिन फेस से पहले मैं आपको बता दूं that if any one of you are wondering that how we get these a sin omega t plus phi or a cos omega t plus phi, so how we are able to get these equations? ठीक है, so for that I have told you in the beginning that force equation for oscillatory motion we should write as minus k, sorry, k into minus x raised to the power n. ठीक है, this is for general oscillatory motion.
general oscillation. But if you are concised for only for the simple harmonic motion, you are restricted yourself to the simple harmonic motion, then for you put n is equals to 1, and the fourth equation that you are getting is k minus k into x. This is for simple harmonic motion. ठीक है. Now we know that force is nothing but mass into acceleration according to Newton's second law of motion, minus k into x. Now again, acceleration can be written as dv by dt, which is the change in velocity over change in time, minus k into x. Again, if you want to write this velocity, so we will write like d by dt, and this velocity is nothing but dx by dt. We want to make this equation in one variable only, that's why we are doing it. So mass into this will become d2x over dt square is equals to minus of kx. ठीक है. Now from here, if you will see, this is d2x by dt square is equals to minus k by m into x. ठीक है. Clear? Now this d2x by dt square is nothing but acceleration, and acceleration is directly proportional to minus x. This is what we have concluded in simple harmonic motion. But this equation, if you take it in the left side, so it will become d2x by dt square. You can take a note of it if you want to. Kx over m is equals to 0. This equation is a second degree equation. Second degree differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे 12th में जाके, लेकिन ये वाली नहीं पढ़ोगे, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. तो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस. सो व्हेन यू सॉल्व इट, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे इसे, मैथमेटिक्स में, इफ एनीवन ऑप्ट फॉर दैट. सो d2x by dt स्क्वायर प्लस kx अपॉन m, इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस 5. तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन, एंड दैट्स रिप्रेजेंट कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो साइनोसोडल फंक्शन होगा. उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी अ साइनोसोडल फंक्शन. सो व्हाट डज दैट मीन कि मेरा जो फंक्शन है x, which is nothing but the displacement from the mean axis, will vary like a sinusoidal wave. ठीक है. दिस दैट मीन, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी अब कि क्यों ये ऐसा हो. अब देखो यहीं से अगर मुझे, if I want to know what is velocity, so velocity is nothing but dx by dt. अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इट विल बिकम a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव. फाइव इज अ कांस्टेंट थिंग है. इनटू ओमेगा टी प्लस फाइव इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो इट विल ओनली गिव्स यू ओमेगा. So finally velocity here will become a omega cos omega t plus minus 5. ठीक है. This is the velocity in terms of time. Clear? अभी देखो velocity का एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास. This is sin omega t plus 5. This is cos omega t plus 5. If you write it like this, cos square omega t plus 5 plus sin square omega t plus minus 5 is equals to 1. ये आइडेंटिटी है. This is valid. So cos square omega t plus 5 will become what? V upon a omega. This is the cos square omega t will become V square over
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से आप x की वैल्यू अगर देखोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले और आप इसे यहाँ पे पुट कर दो, सो व्हाट इट वुड बिकम वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा ए स्क्वायर, सॉरी ए तो कॉमन ले लिया, इट विल बिकम ए स्क्वायर। तो वी स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच वी कैन ऑल्सो राइट एज ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। यहां से अगर आप फोकस करोगे, a is nothing but the amplitude, the maximum displacement from the mean position। अगर मैंने x की वैल्यू a रखी, which means at the maximum position or the extreme position, ठीक है, तो पार्टिकल तो मेरा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ मीन पोजीशन पे, और फिर ये पोजीशन क्या हुई, एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस ए और माइनस ए। So if I put plus a and minus a, what is the value of velocity that you are getting? You are getting zero velocity, which means at the extreme position velocity will be zero. And for the maximum value of velocity, you should put x is equals to zero. So x की minimum value zero हो सकती है, तो velocity will become a omega, which means we will be having maximum value at the mean position at both the time, if it is going left to right or going right to left, in both the cases। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। अब देखो फेज के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन, ये जनरल है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, हियर दिस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव नॉट भी बोल देते हैं इसे, यहाँ पे फाइव नॉट लिखते हैं। तो दिस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इज इक्वल्स टू फाइव इटसेल्फ, एंड दिस इज नथिंग बट phase of the system। Now what do you mean by phase? Phase denote the status of the oscillatory system। तो जो भी सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है उसका किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट, व्हिच मींस उसकी पोजीशन क्या है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द फेज। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमने किया हुआ था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है ना। तो इन एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही। सो इसमें भी अगर आप देखो तो हमने पी पॉइंट पे लिया था एक पार्टिकल जो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे ये पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे देखो इसका ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। चेंज होने से इस पार्टिकल का स्टेटस बदल तो रहा है ना, इसकी पोजीशन बदल रही है। एट 90 डिग्री इट इज मीन पोजीशन, यहाँ पे अलग पोजीशन पे है, यहाँ पे अलग पोजीशन पे। तो जैसे जैसे मैं एंगल बदल रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन बदल रहा है, बिकॉज हियर पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ द एंगल, फंक्शन ऑफ टाइम, बट टाइम इटसेल्फ इज अ साइनोसोडल फंक्शन। क्लियर हुई बात? सो दिस ओमेगा टी प्लस फाइव नोड will gives you the status of a body where it is currently for a particular instant of time। ठीक है, सो ओमेगा को वी कैन राइट एज 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ये ऐसा कैसे लिखेंगे बताओ। देखो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन।
और 1 ऑसिलेशन। अब सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग 1 ऑसिलेशन पूरा करने में कितना एंगल लिया, 2 पाई, so that will be 2 pi divided by capital T. So angle per unit time will be the angular speed, which is omega. So omega को we can write as 2 pi by T. Similarly, linear speed को we can write as 2 pi r if r is the radius of the circle by capital T. और यहीं से ही आप v और ओमेगा को रिलेट कर सकते हो, 2 pi by T is nothing but omega, so v is equals to r omega. ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अभी put the value of this omega in this expression, so what you are getting, a sin 2 pi by capital T into small t plus 5. ठीक है, here this phi naught is nothing but the initial status when t is equals to 0. What is the value of x will depends on phi naught, because at t is equals to 0 this expression reduces to a sin phi naught. So phi naught is the initial status or the initial phase. क्या बोलते हैं इसे, इनिशियल फेज। और ये कब होगा, एट टी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो, इफ आई पुट टी इज इक्वल्स टू लेट्स से टी बाई टू, मतलब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, सो वेयर इज द पार्टिकल, पुट इट हियर, तो एक्स वुड बी व्हाट, चलो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, एक्स व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए साइन फाई नॉट। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन से ही मैं समझा सकता हूँ ये बात आपको, यानी मेरा जो पार्टिकल है उसने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, द पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम फाई नॉट, तभी तो उसका पोजीशन कितना दिखा रहा है, ए साइन फाई नॉट। ठीक है, ये इसका कितना लेंथ वेक्टर हुआ, विच इज वैल्यू ऑफ एक्स, इसका कंपोनेंट ये क्या हुआ, आर वेक्टर, इसका कंपोनेंट अगर आप लोगे ये एक्स कंपोनेंट, इट इज नथिंग बट आर साइन फाइव, सॉरी आर कोस फाइव। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन फाइव। ठीक है, और ये आर ही तो ए है ना, एम्पलीट्यूड, सीधी बात है। तो ये वर्टिकल वाले मोशन को रिप्रेजेंट कर, वर्टिकल डायमीटर के अलोंग कैसे कैसे पार्टिकल मूव कर। तो इनिशियली पार्टिकल फाइन नोड यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई, ठीक है ना, कैपिटल टी बाई टू यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे कहाँ गया। अब देखो, ये मेरा पार्टिकल है, ऐसे भी दिखा देता हूँ आपको, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो पहले पार्टिकल यहाँ पे गया हुआ, सपोज 0 से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, उसके बाद वापस आया होगा मेन पोजीशन, फिर माइनस एक्सट्रीम, और फिर अगेन। तो ये एक ऑसिलेशन, इस टोटल जर्नी में जो टाइम पीरियड इसने कंज्यूम किया दैट इज कैपिटल टी। सो वी कैन से जब ये यहाँ पे गया होगा तो टाइम पीरियड इसने टी बाई फोर लिया होगा, अगेन आते हुए कितना कंज्यूम किया होगा, टी बाई फोर, तो कितना हो गया, टी बाई टू, फिर से टी बाई फोर, तो कितना हो गया, 3t/4, एंड देन अगेन आया तो फिर से t/4, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ t/4 विच इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, so according to our calculation at t/2 it should be at x is equals to 0. Let's see it is happened or not. So x is equals to a sin, अब देखो, it will also depend on the value of phi naught, 2 pi by t capital T into this will be capital T/2 plus phi naught. Now this and this will cancel out, 2 and 2 will cancel out, so this will become x is equals to a sin phi plus phi naught if phi naught is equals to 0, और phi naught 0 यानी कि हमने बिल्कुल x is equals to 0 से ही स्टार्ट किया। phi naught 0 का मतलब क्या है,
पार्टिकल ने यहीं से मोशन स्टार्ट की। हम्म if phi naught is zero, so we can say sin pi is what? Zero. ठीक है, you can take it for different values. By putting the time, you can easily calculate the displacement. ठीक है, so phase से आपको क्या समझना है, this omega t plus phi naught is the phase of system. ठीक है, अभी अगर if I say that this d phi by dt, what is the meaning of d phi by dt, which is nothing but change of phase. ठीक है, this is change of phase per unit time. क्लियर है, इसे नोट करो भाई, एवरीवन नोट इट डाउन. Make the note of it and let me know when you are done with it. इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं है, ओमेगा ई. ठीक है, क्लियर है भाई. चलो, एनर्जी इन एसएचएम की बात करते हैं. व्हाट इज द एनर्जी, फर्स्टली लुक एट दिस एमिनेशन. व्हाट इज दिस एमिनेशन ट्राई टू से. तो मेरे पास एक ब्लॉक है, उसके पास v वेलोसिटी. जैसे ही वो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है एंड स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, इन दिस कंप्रेशन इट इज लूजिंग आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग इज गेनिंग द पोटेंशियल एनर्जी. जब वो पूरा कंप्रेस उसे कर चुका है, उसके बाद कंप्रेशन नहीं हो सकता, देन स्प्रिंग विल ट्राई टू इलोंगेट इटसेल्फ, और स्प्रिंग के पास जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस में क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट. देखो, तभी तो ये पहले फुल ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक की, ये जीरो हुई और ये ब्लू वाली एनर्जी बढ़ गई, है ना. उसके बाद स्प्रिंग ने वर्क किया, बाय यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी इट हैज स्टोर्ड इन इट, और ब्लॉक ने क्या कर लिया, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली. which means as we reduces the kinetic energy, potential energy will increase, or as potential energy will decrease, kinetic energy will increase. This is the simple thing that I want to convey here. Now, एनर्जी इन एसएचएम को कैलकुलेशन हम कैसे देंगे, देखो, जीरो से बी पॉइंट पे हमने डिफरेंस इसे एलोंगेट किया स्प्रिंग को, एंड देन ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, और इधर भी बी. ठीक है, क्लियर है. तो फोर्स मेरे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फोर्सिबल हार्मोनिक मोशन. अच्छा, अभी मैं क्या देखूंगा कि कितना वर्क डन हो रहा है इस फोर्स के थ्रू फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझ लेते हैं बात, उसके बाद इसके बारे में बात करें. देखो, मेरे पास ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है. अभी
जब मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया एक्स डिस्टेंस, तो स्प्रिंग में कितने फोर्स लगेंगे बताओ? व्हाट इज द फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग? कैन वी से दैट इट इज F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स? एम आई राइट और नो? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एनी काइंड ऑफ डाउट गाइस? अगर मैं इसे फर्दर इंक्रीज करता हूँ एक्स से 2x पर, अब कितना फोर्स लग रहा होगा? माइनस 2kx, या कह सकता हूँ माइनस के इंटू 2x, विच मीन्स एज आई इंक्रीजिंग द डिस्टेंस और एज आई इंक्रीजिंग द लेंथ, द फोर्स इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स मेरा जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है विच इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर in work energy and power chapter we try to do work done by variable force. तो वो क्या होता है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय dw f इंटू dx. तो हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है? ये मेरा फोर्स फोर्स है, ये x है, तो मेरा फोर्स ऐसे वेरिएबल x के साथ, ठीक है, वेरी कर रहा है, देखो एज x इंक्रीजिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट अ वेरी स्मॉल स्लैब. यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया, बट ये बहुत छोटा स्लैब है dx में. ये इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर स्लैब है. तो ये जो फोर्स की वैल्यू हुई, ये वाला, ये क्या है? एफ है. तो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए एफ की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि एफ इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट फोर्स. और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू dx. तो ये वर्क भी कितना होगा? बहुत छोटा होगा. टोटल वर्क के लिए से इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट स्टफ देयर. क्लियर है बात सभी? अभी देखो यहाँ पे dw इंटीग्रेशन माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? और लेट से जीरो से एक्स तक ही से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बिकम w इज इक्वल टू माइनस 1/2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? अब मेरी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स. और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, ठीक है? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू मेरे पास क्या आ गया? 1/2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर. अब मुझे पता है कि अगर ये स्प्रिंग मोशन में है तो एक्स विल बी गिवन बाई व्हाट? ए साइन ओमेगा टी. अगर फाइन नोट को कंसिडर ना करूं, तो यू विल बी 1/2 टाइम्स के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इजंट इट? तो यू का जो वेरिएशन होगा एक्स के साथ कैसा होगा बताओ? अगर मेरा पास साइन का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? अब उसमें नेगेटिव पोर्शन तो नहीं है, तो ये ऐसे ही जाएगा सबका सब. ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन था ना नीचे, ये इसका प्रिंट नहीं आ जाएगा ऊपर की, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगी नहीं. तो मेरे पास ऐसा वेरिएशन है, ठीक है? और इसका टाइम पीरियड घट के हाफ हो जाएगा, यानी कि जितने टाइम में स्प्रिंग और ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, उतने ही टाइम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 बार ऑसिलेट करेगी, ठीक है ना? 2 बार कम ज्यादा होगी. सिमिलर सी बात है. अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हो. इट इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स एम वी स्क्वायर. और वी क्या है? वी विल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, ठीक है? तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम 1/2 टाइम्स m
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से ये जो ए ओमेगा है ये क्या है? ये जो टोटल चीज यहाँ पे आपको दिख रही है ये क्या बना? ये के की तो वैल्यू है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ओमेगा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम इन द प्रीवियस लेक्चर। तो स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? ठीक, तो कैपिटल के विच इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी साइन पे डिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी कॉस पे, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेरी करें। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब साइन की वैल्यू 90 पे क्या होती है? साइन 90 इज 1 बट कोस 90 इज व्हाट? 0। साइन 0 इज 0 बट कोस 0 इज 1। ठीक है, तो वेन एवर द कोस अचीव द मिनिमम वैल्यू साइन अचीव द मैक्सिमम वैल्यू, सो दे एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ठीक है, तो अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? ऐसा होगा। जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है, ये जब मिनिमम है तो ये मैक्सिमम। ठीक है ना? चलो, देख लिया आपने। अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो ये एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करा दिया तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो द सेम, बट इन्होंने क्या है 5 को इंक्लूड कर लिया, डजेंट मैटर। ठीक है, +5 तो ऐड करना। अब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी क्या होगी? सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो इट विल बी रिटन लाइक दिस। एक्सप्रेशन के साथ पुट करेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी +5 सिमिलर प्लस दिस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी +5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5। दिस इज द आइडेंटिटी। What kind of identity? It's a sin square theta plus cos square theta is equals to 1। यही तो है। तो टोटल एनर्जी आप देखोगे अगर इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ ना तो टी है और ना यहाँ पे क्या है? साइन है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरी टोटल एनर्जी है मास ओमेगा एंड ए, ये तीनों ही क्या है? कांस्टेंट थिंग। मास भी कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है एंड एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द टाइम, विच मीन्स किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में एंड स्पेशली फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी विल बी अ कांस्टेंट थिंग। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी टाइम से। ठीक है, and this is somehow implies what? This is implying the conservation principle. Total energy is conserved, it is not increasing or decreasing. ठीक है, the only variation is happening between kinetic and potential. If kinetic is increasing, potential is decreasing. समझ रहे हो? देखो, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ब्लू वाली लाइन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो -a और +a पे तो ये 0 होगी। अब बताओ क्यों होगी ये 0? Kinetic energy at the extreme position is 0 because at extreme position velocity will become 0. So if the velocity is 0, so we can say kinetic energy is also 0. Clear है? अब देखो potential energy depends on the configuration where you have substitute, where you have put the mass. तो origin से यानी कि जहां से मेजर कर रहे हैं वहां से जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। देखो, or in the other words you can say all the kinetic energy is restored in the form of
पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। अगेन जैसे ही मैं वापस से इस तरफ मूव करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, एंड एट द मैक्सिमम, at the mean position, the potential energy will be minimum and kinetic energy will be maximum. Now in this case we cannot say, देखो एक important point आप याद रखना, important note, at extreme position kinetic energy will be maximum and potential energy will be, extreme position पे, sorry, extreme position पे kinetic energy will be zero and potential energy equals to maximum. Okay, but at mean position, at mean position काइनेटिक एनर्जी, और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, बट द पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी जीरो, इट विल बी मिनिमम, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है। अगर मैंने रेफरेंस लाइन थोड़ा बड़ा ले लिया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम तो हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी मेजर ही यहाँ से कर रहा हूँ, उस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, बट पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी जीरो, इट विल बी मिनिमम, इट कैन बी जीरो बट इट विल से, वी विल से इट एज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो वही यहाँ पे जीरो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने यही पोजीशन से मेजर करना शुरू किया, किसे, पोटेंशियल एनर्जी को। तो जब भी मेरा जो स्प्रिंग है वो अगर मीन पोजीशन पे है तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, टोटल एनर्जी सोलरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, एंड द सेम वी कैन डू फॉर, जब वो यहाँ पे आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, विच मीन्स मेरी जो सारी एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या जेएनवी शिमोगा, एनी डाउट यू आर हैविंग? चलो ये क्वेश्चन देखो आप, a particle of mass 40 gram execute a SHM of amplitude 2 centimeter. If the time period is 0.20 second, then find the total mechanical energy of the system. चलो, I'm giving you 1 minute to solve this question. Let me know who is able to solve it or not. Particle है, mass 40 ग्राम है, execute a simple harmonic motion of 2.0 centimeter. Time period is also given to you. Find out the total mechanical energy of the system. Total mechanical energy of the system is also constant quantity. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड दैट। बताओ भाई, हु इज प्रेजेंट? प्रेजेंट तो सभी हैं बट कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है, अल्टीमेटली योर लॉस नॉट माइन। इशरत, फरनाज, देवानंद, अजमाला, शिरी शिमोगा, जैन शिमोगा, आई एंड लिखिता, नवोदयन, निधि, सुहरा, तोशिया, बिंदु। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन।
8 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, चलो देखते हैं भाई। देखो मास इसका कितना गिवन है, 40 ग्राम। तो फर्स्टली सब ऐसा यूनिट में रखो एमकेएस सिस्टम में, विच विल बी 40 × 10⁻³ किलोग्राम। Then after time period is given to you as 0.20 second and amplitude is given to you as 1 by 2 times, amplitude is 2.0 सेंटीमीटर, which means 2 into 10⁻⁻² मीटर। अब टोटल एनर्जी क्या है, 1/2 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो है। बट यहाँ पे ओमेगा की टर्म्स में हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट। अब मुझे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओमेगा बहुत सिंपल है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई/कैपिटल टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू मुझे पता ही है, इट विल बिकम 2 into पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज व्हाट, 0.2, सो इट विल बी 10 पाई। मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 और डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 10 पाई ओमेगा। 1/2 टाइम्स m की वैल्यू इज 40 10⁻³ ओमेगा स्क्वायर विल बी 100 पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी 4 into 10⁻⁻⁴। तो 40, ये हो जाएगा 20, 10⁻⁻³ -4 will be -7 and this 2 will cancel out that, this is 0, it will be 80 into 10⁻⁻⁵, है ना। So first we can say that 0.8 into 10⁻⁻³ joule, or we can simply say that 0.8 millijoule, है ना, ऐसा बोल सकते। क्लियर है भाई। सेम एक्सप्रेशन यूज किया है, देखो यहाँ पुट कर दिया इन्होंने पाई की वैल्यू वगैरह। हमने पाई की वैल्यू पुट की थी, नहीं पाई स्क्वायर रहेगा ये साथ, पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा आपका भी। नाउ द सिस्टम एग्जिबिटिंग एसएचएम, और सिस्टम में बेसिकली हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी ऑसिलेटरी मोशन करता है बिकॉज द फोर्स हियर वी नो इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू -kx। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये एसएचएम करेगा। सबसे पहले जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस, वन एंड पे अटैचमेंट होना चाहिए, एंड जो ब्लॉक है दैट शुड शो अ कंटिन्यूअस मोशन अलोंग द मीन पोजीशन। और हमेशा याद रखना जहां से आपने स्ट्रेच किया दैट पॉइंट इज द मीन पोजीशन। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। जब मीन पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा और वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये सब चीजें, इसमें टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। ओमेगा तो √k/m है, हमेशा याद रखना है आपको। तो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई/ओमेगा, विच मीन्स टाइम पीरियड हियर इज 2 पाई इंटू √m/k। हमेशा याद रखना है एक बात, जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई इज इक्वल्स टू, it's not always m/k, this time period is actually the ratio of inertia force या inertial property, inertia force and divided by this is the spring force या we will say elastic force। तो अगर कोई स्प्रिंग के अलावा कोई और सिस्टम है, यू हैव टू फाइंड आउट what is the inertial force in this system and what is the
spring force in this system, that force which is behaving as a spring force. ठीक है, so that ratio is m by now यहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। block of mass 10 kg is given, is attached to a spring of spring constant 100 Newton per meter. Block is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter and released. इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर पे ऐसे लेके आए और छोड़ दिया, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ, मैक्सिमम तो वहीं से ही जाएगा, है ना। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है आपको, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। चलो करते हैं भाई। देखो ये वो केस है, 10 सेंटीमीटर पे लेके आया हूँ और देन रिलीज, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट एम बाई के। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा तो ओमेगा भी आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, वीटी विच इज नथिंग बट ए ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू तो यही है इसकी, जो भी फ्रंट में लिखा होता है ना इस साइन को छोड़ के, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अगर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लस 5, तो इफ आई आस्क व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, सो यू वुड से a प्लस माइनस a। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इज दिस इज a ओमेगा, we can put the value, get the answer. Similarly, maximum acceleration will be omega square x into t. So this will be omega square into a. तो यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो ऑसिलेशन ड्यू टू सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ फॉर योर अटेंडेंस, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट पोल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट in these topics, you can connect to me over the chat, but please do fill that form. This is mandatory for your attendance purpose. Please make sure of it. Okay, bye, take care everyone, and may you be successful in your life. किसी को कुछ भी डाउट है तो you can ask.